बहुत बार बात होती है मीडिया में, वैसे पूछा जाता है कि यार हिंदुस्तान और कनाडा में आप कैसा फील करते हो। 18 घंटे काम किया है मैंने। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी गैस स्टेशन अटेंडेंट से, उस कंट्री के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड से। तो मेरे लिए ये जो वर्ड है, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे तो सपने की तरह लगता है। और कई बार मुझे लगता है कि क्या मैं वाकई ये चीज़ डिजर्व करता हूँ ज़िंदगी में। ऐसा मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक दिन मुझे उसका एक आंसर मिला जो कि बहुत कन्विंसिंग था। वो ये था कि शायद इसके पीछे ब्लेसिंग्स का हाथ है। आप जैसे टीचर्स का आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, शायद उससे बड़ी ताकत मुझे कोई मिल नहीं पाई। डायरेक्टर सर, पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक तो आपने बात की थी कि प्लेसमेंट की, यहाँ पे मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव 50 जॉब्स एवरी ईयर। आपकी बात की थी कि आपने यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, उसके लिए मैं 2024 में आपको 1 करोड़ का बजट दूंगा। सर, आपने बात की थी कि आपने एक गाँव को अडॉप्ट, तो हर साल मैं 5 लाख रुपए का चेक आपको बच्चियों को कुछ करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए आपको भेजूंगा। For everyone to meet our alumnus Mr. Raman Dua and Mr. Amardeep Singh and Mr. Vipin Sharma. Mr. Dua has won several awards for his innovative business practices, mentorship, and philanthropy, include the Philip Kotler Award for Creativity, Marketing, and the Pride of the India Award. He was recently awarded the Queen Elizabeth II Platinum Jubilee Pin and recognized as a Heritage Hero by the Heritage Mississauga. He is a role model for the aspiring entrepreneurs and the community leaders. Under Raman's leadership, SaveMax has become a successful business and a force for the good in the community. I welcome you, sir, and I request our director, sir, to formally welcome the sir by presenting the sapling of the Tulsi. INSAR alumni are well placed around the globe, and Mr. Dua is one of them. He was the topper of his batch 1996-98. I'm proud for INSAR that he has established such a big enterprise in Canada. Regarding our INSAR, because we are also very thankful of our alumnus regarding placements and summer training opportunities, and those are being provided time to time by the INSAR alumnus. Mr. Dua is one of the pioneer students of INSAR who are doing their own business as entrepreneurship, because the India's policy at present, the government of India is also focusing on this entrepreneurship and startups. So with your help, we are trying to establish an incubation center in INSAR itself, so that our students can make their future in startups and entrepreneurship. Right now, most of the students are trying to get placements in good establishments like public sector as well as private sector companies. But when there will be the opportunity for them to start their own startup, so we will hope that you will guide us in that right direction, and we will be a good opening of such kind of incubation centers. It gives me a lot of pleasure that today we have with us our eminent, elected, distinguished, most successful alumnus, Mr. Raman Dua. एक बार जोरदार तालियां चाहता हूँ आपको. I'm a regular follower of Mr. Raman Dua. मेरे स्टूडेंट रहे हैं, but अब as a teacher रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि I am his follower. Somebody asked me, what is the secret of your success? He did not utter even a single word. ना लोग किताबी बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना? He simply came out with his routine. And anybody, I challenge, anybody who will look into that routine will say he is the most right man. Thank you very much. It's really an honor and pleasure, and I'm really humbled to be here almost, I would say, close to 30 years. बहुत बार बात होती है मीडिया में, वैसे पूछा जाता है कि यार हिंदुस्तान और कनाडा में आप कैसा फील करते हो। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि कनाडा जो है वो मेरा दिल है,
और हिंदुस्तान चली आता। वहाँ पे 10-15 साल बहुत भागदौड़ रही, 18-18 घंटे काम किया है। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी एक गैस स्टेशन अटेंडेंट से, उस कंट्री के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड से। तो मेरे लिए ये जो वर्ड है, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे तो सपने की तरह लगता है और कई बार मुझे लगता है कि क्या मैं वाकई ये चीज़ डिजर्व करता हूँ जिंदगी में। ऐसा मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो बार बार मैं उस क्वेश्चन को अपने आप से पूछता था, फिर कोशिश करता था कि उसका आंसर ढूंढूं। तो कभी आता था मन में शायद मेहनत बहुत की है, कभी आता था मैं स्मार्ट बहुत हूँ, कभी आता था यार मैं बड़ा अच्छे इंस्टीट्यूट में हूँ। तो बहुत सारे जवाब मुझे खुद से ही आते थे ना, तो मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ। तो एक दिन मुझे उसका एक आंसर मिला जो कि बहुत कन्विंसिंग था। वो ये था कि शायद इसके पीछे ब्लेसिंग्स का हाथ, फिर इसके पीछे आप जैसे टीचर्स का आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है। शायद उससे बड़ी ताकत मुझे कोई मिल नहीं पाई, क्योंकि कामयाबी का मतलब ये नहीं कि मैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा बन जाऊं। कामयाबी का मतलब है कि हम और कितने लोगों को अपने साथ कामयाब कर सकते। सो माय थ्योरी ऑफ सक्सेस इज क्रिएटिंग सक्सेस फॉर अदर्स इज रियल सक्सेस। पर ये मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आया ऋषि सर। मैंने जब अपनी रियल एस्टेट की जर्नी शुरू की तो पहला ड्रीम था कि $2.5 लाख कमाना। सो $2.5 लाख कमाने में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं उस समय बड़ी अच्छी जॉब करता था, $90,000 बनाता था। तो एक दिन मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला और कार में बैठा और ये सोच रहा हूँ $2.5 लाख कैसे बना। तो मैंने कहा बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो अपने आप को असेस कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा एक चैलेंज नजर आया, वो 90,000 की नौकरी। ये 9 बजे मैं अपने आप से एक सेल्फ डिस्कशन करता हुआ जा रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली मेरी एक एबिलिटी जरूर रही है। एक चीज का मैं क्रेडिट खुद को जरूर देना चाहता हूँ, तो ये कि जिंदगी में शायद मैंने इग्नोरेंस बहुत सीखी है। इग्नोरेंस बहुत सीखी है। कई लोगों को लगता है कि यार इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है जिंदगी में इग्नोरेंट होना चाहिए। तो मैं 9 बजे अपनी गाड़ी में अपने आप से बात करता हुआ जा रहा हूँ और 9:30 बजे मैंने जाके रिजाइन कर दिया। उस समय मेरे ऊपर घर की मॉर्गेज भी थी, मेरी वाइफ भी जॉब नहीं करती थी, मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं था। तो वो जो एक इग्नोरेंट रिस्क था ना, वो रिस्क शायद मेरी जिंदगी की कोई डायरेक्शन देने के लिए, तो वहां से मेरी जो है रियल एस्टेट की जर्नी शुरू हुई। सर हम हमेशा बच्चों को यही कहते हैं, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का एक बार पेपर पढ़ाया है, to be an entrepreneur requires 2 things, risk taking and creativity. तो आपने आज इसका रियल एग्जांपल दे दिया। आप जितने भी बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी सबके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है। मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद आप अपना नजरिया जरूर बदलिए उन बच्चों की ओर जिनको हम ये समझते हैं नालायक। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेंटीज आते हैं जो कहीं पे भी कामयाब होके नहीं आते, जो नाकामयाब होके पहुंचते हैं मेरे पास, और मैं उनको एक गारंटी देता हूँ, मुझे आप 2 चीजें दे दीजिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और काम करने की लगन, आपकी कामयाबी मेरी जिम्मेवारी। क्यों? मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो हम पहचान नहीं पाते, जो किसी ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो आप लोग उसके मास्टर्स हैं। तो आज से 2-3 साल पहले मैं ये बैठा हुआ सोच रहा था कि यार हमने इंडिया में जो कुछ सीखा वो कनाडा को बताया। तो हम उस समय बात कर रहे थे अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस की कि कहाँ से शुरू करें। जब कनाडा से यहाँ सोचने की बारी आई तो हमने पहले इंडिया को चुना। उसके 2 रीजन थे। एक पर्सनल रीजन था, वो पर्सनल रीजन ये था कि हमारा अपना देश, हम यहाँ से गए हैं, हम यहाँ से पढ़ लिख के सब कुछ किया है, तो हम इस कंट्री को क्या वापस दे सकते। और दूसरा रीजन प्रोफेशनल था, बिजनेस रिलेटेड था, कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मेरी एस्पिरेशन है एक ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने की, तो मैं इंडिया की मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता। खास तौर पर मैं ये बात आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा, ब्रेन ड्रेन। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये बहुत अलग तरह की सोच है। हमारे यहाँ कोई ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, इट इज ए ब्रेन एक्सचेंज। आज देखें, आज अमर साहब कनाडा से सीख के वापस आए हैं, मैं कनाडा की लाइफ जी के वापस आया हूँ। क्यों आए हैं वापस यहाँ पे? इसलिए आए हैं कि जो हमने कनाडा में सीखा, जिसको हम बोलते हैं HIT फॉर्मूला, HIT, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट, ये कैनेडियन वैल्यूज है।
जो कि शायद किसी ना किसी तरीके से हमारे कल्चर में से गायब हो गई। तो हम अपनी इस सोच के साथ वहां से यहाँ आए, और मैं एक चीज में बहुत क्लियर हूँ लाइफ, मैं यहाँ पूरा कंट्री बदलने नहीं आया, मैं पूरे देश को बदलने नहीं आया। क्यों? उसमें तो मेरी 7-8 जिंदगियां खप जाएंगी, पर मैं कुछ लोगों का देश जरूर बदल गया। जो लोग मेरे संपर्क में हैं, जो हमसे इन टच होते हैं, उनके लिए संसार जरूर बदलने की कोशिश करूंगा। मैं इस नियत से भी नहीं आया। मैंने 10-11 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन एक बेसमेंट से शुरू की थी, ऑलमोस्ट इसी साइज की बेसमेंट थी जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया है। और आज मुझे नहीं पता कि मुझे प्राउड फील करना चाहिए या मुझे खुश होना चाहिए या मुझे कैसा एक्सप्रेस करना चाहिए, पर आज जब वापस मुड़ के देखता हूँ तो जो 1 लाख करोड़ की हमने ट्रांजैक्शन की कंपनी बनाई है, जिसमें कि हमने ऑलमोस्ट 1500 लोगों को कनाडा के अंदर जॉब दी है, जिसमें मेजॉरिटी न्यू इमिग्रेंट्स हैं। हमारी एक पॉलिसी ऑफिस के अंदर कि हम किसी भी नए इमिग्रेंट को जॉब मना नहीं करते, और बहुत सारे यंग बच्चे यहाँ से जाते हैं, वो मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको जरूर मौका देता हूँ अपना टैलेंट प्रूव करने का, एज लॉन्ग एज दे रिस्पेक्ट इट, दे अंडरस्टैंड। डायरेक्टर सर, पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना मान सम्मान इज्जत दिया। ऋषि सर, जैसे मैंने कहा कि इंसान हमारा दिल है तो आप हमारी आत्मा है। और राजकुमार सर, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर, आप सबसे भी। आपने सर 2-3 पॉइंट्स मेंशन किए थे, मैं जरूर उनके ऊपर भी बात करूंगा। एक तो आपने बात की थी कि प्लेसमेंट की यहाँ पे, तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव 50 जॉब्स एवरी ईयर। 50 नौकरियां। और मैं जब उनकी नौकरियों की बात कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल में जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उन बच्चों को एंटरप्रेन्योर बना के तो 50 जॉब प्लेसमेंट्स आपकी हम हर साल कोशिश करेंगे, जहाँ पे कि हमारे दोनों ऑपरेशन जो यहाँ चल रहे हैं, और भी ऑपरेशन है। मैं एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, जो एक बर्थ टू डेथ का कॉन्सेप्ट है, वो कभी आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो सर, एक ही मेरा आपसे प्रॉमिस है। हाँ, दूसरा सर, आपसे बात की थी कि आपने यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, तो उसके लिए मैं 2024 में आपको 1 करोड़ का बजट दूंगा। वो बजट आपके लिए, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है, हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है, आप मिलके उस पर डिस्कस कीजिए, प्रपोजल बनाइए, मेरे पास भेजिए। 1 करोड़ का बजट हम उस काम के लिए एलोकेट करेंगे। तीसरा सर, आपने एक बात की थी कि आपने एक गाँव को अडॉप्ट किया। उसके लिए मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं, पर आप लोग जो भी कर रहे हैं, तो हर साल मैं 5 लाख रुपए का चेक आपको कंपनी की तरफ से उस गांव में बच्चियों को कुछ करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए मैं आपको भेजूंगा। 2-3 चीजें वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उसमें सबसे पहली चीज है हेल्थ केयर। उसका रीजन था कोविड। सो कोविड में वी वर ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, जो कि मैं मानता हूँ कि हमारी जिंदगी में एक पर्सनल ब्लेसिंग है। उसका नाम है आर्या। ऋषि सर तो बहुत अच्छे से जानते हैं उसको वीडियोस के थ्रू। तो वो मैं मानता हूँ कि आर्या जो है हमारी जिंदगी में एक ब्लेसिंग है। मेरे पास पहले भी 2 बच्चे हैं, वी हैड अ $1 बिलियन फैमिली। जब एक लड़का और लड़की होता, हमारे कनाडा में उसको $1 मिलियन फैमिली बोलते हैं। तो अब मैं बोलता हूँ कि हमारी $1 बिलियन फैमिली हो गई है। तो एक हेल्थ केयर पे मेरा बड़ा फोकस रहता है। अभी पीछे हमने टीम के साथ मिलकर क्लोज टू $2.5 मिलियन, जो कि अराउंड 15 करोड़ रुपया बनता है, हमने वहाँ एक हॉस्पिटल के लिए डोनेट किया है। और यहाँ पे आपके करनाल में भी एक संस्था है जहाँ डॉक्टर मार्केंडे जुड़े हुए हैं। कोविड में हमने वहाँ एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड की। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम सब लोगों को इन चीज़ों से इंस्पिरेशन मिले कि हम भी कुछ अपनी तरफ से जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कंट्रीब्यूट करें।
दूसरा मेरा बहुत बड़ा फोकस होता है यूथ के ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर, क्योंकि वो हमारी जो है उसमें आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो यूथ है ना, ये सबकी शेयर है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात तो करते हैं पर उसको अप्लाई नहीं करते, हम अपने बच्चों में उलझ के रह जाते हैं। तो मेरा जो परिवार है शायद उससे बहुत बड़ा है, मैं ये मानता हूँ कि पूरा वर्ल्ड ही हमारा परिवार है। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लड़कियों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करना, सो दैट वैसे तो दे आर बेटर देन मैन एनीवे, पता नहीं वो क्यों मानती नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आया। 56% ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर फीमेल। और जिस दिन मैंने अपना बिजनेस ऑपरेशन शुरू किया था, हमने दो चीजों पे सर काम किया था। दो पॉलिसीज है जो आज तक हम डिलीजेंटली फॉलो करते हैं। सबसे पहली थी कि आज तक हमारे ऑफिस में कहीं पे भी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड लीकर नहीं आता, ड्रिंक्स नहीं आता, किसी को अलाउड ही नहीं है, बियर तक पीना अलाउड नहीं। आप बाहर पियो, मेरे घर आके पियो, नो प्रॉब्लम। दूसरा था, हमारे ऑफिस के अंदर फीमेल स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। तो ये हमारे कुछ छोटे से सिद्धांत हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। तो सर आपके तीनों पॉइंट्स पे आई थिंक आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। और अगर इसके अलावा मैं कुछ और भी कर सकूँ तो अमर साहब है यहाँ पे आपके लिए, विपिन जी हैं, एंड विल डेफिनेटली ट्राई आवर लेवल बेस्ट। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोस्टली मुझे माइक पकड़ाते नहीं है। मैं रमन के बारे में एक थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँगा। न जाने कौन सा खजाना छुपा है इनके लिहाजे में, जब ये बोलते हैं तो दुनिया खरीद लेते हैं। तो अगर इट इज ऑलवेज आई थिंक इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिविटी क्रिएट करती है और लंबे टाइम तक कैरी करती है। तो वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर एक्चुअली